بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کسی غیر مقلد کا حوالہ بھیجا ہے کہ غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ نہیں اور وہ نہیں سنتے ہیں قبروں میں، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ جواب تو اس کا بالکل آسان ہے۔ ایک تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو قرآن مجید کی آیات اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، لیکن غیر مقلدین کے جتنے بڑے اکابر گزرے ہیں وہ خود بھی عقیدہ حیات انبیاء کے قائل تھے۔ آج کل کی جو جتنے غیر مقلدین ہیں موجودہ دور کے، یہ اتنی ضدی ہے کہ اتنی ضدیت شیطان میں نہیں جتنی ان میں پائی جاتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ عقیدہ حیات انبیاء کے متعلق ان کے اپنے بڑے کیا لکھتے ہیں۔ یہ غیر مقلدین کے مشہور، جن کو غیر مقلدین اپنا امام مانتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الروح صفحہ 55 پر فرماتے ہیں، وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم یسمعون خفق نعال المشیعین واخبر ان قتل بدر سمعوا کلامہ وخطابہ۔ یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غیر مقلدین بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے ہمیں کہ مردے رخصت کرنے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتے ہیں۔ اور یہی غیر مقلدین کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کے صفحہ 181 پر فرماتے ہیں، سماع المیت للاصوات من السلام والقراءات حق، کہ مردوں کا سلام اور قراءت کی آوازوں کو سننا یہ عقیدہ بالکل برحق ہے۔ یہ غیر مقلدین کے بڑے ہیں۔ غیر مقلدین کے ایک اور بڑے ہیں قاضی شوکانی، جس کو غیر مقلدین بہت اچھالتے بھی ہے۔ وہ قاضی شوکانی کیا لکھتے ہیں؟ قاضی شوکانی اپنی کتاب نیل الاوتار جلد 3 صفحہ 264 پر لکھتے ہیں، مع ان مطلق الادراک کالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى، کہ علم اور سماع سننا یہ تمام مردوں کے لیے ثابت ہے۔ غیر مقلدین کے بڑے ہیں نواب صدیق حسن خان، اپنی کتاب دلیل الطالب علی ارجح المطالب کے صفحہ 440 پر لکھتے ہیں کہ تمام مردے چاہے مومن ہو یا کافر، حصول علم، شعور، ادراک، سماع، عرض اموال اور زیارت کرنے والوں کے سلام کی جواب لٹانے میں برابر ہے۔ ان امور کی تخصیص محض انبیاء اور صلحاء کے ساتھ نہیں۔ یہ دوسرے غیر مقلد ہے۔ غیر مقلدین کی اپنے بڑے سارے اقرار کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کیا بلکہ تمام مردے قبروں میں زندہ ہے، لیکن یہ آج کل کے جتنے بھی غیر مقلدین ہیں یہ حقیقت میں غیر مقلدین بھی صحیح معنوں میں نہیں ہے، یہ خواہشات نفسانیت کے پیروکار ہے۔ مولانا عبدالتواب ملتانی غیر مقلد اپنی کتاب حاشیہ بلوغ المرام کے صفحہ 198 پر لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ قبر والے گزرنے والوں کو اور اس کے سلام کو جانتے ہیں، چاہے جمعے کا دن ہو یا کوئی دوسرا دن ہو۔ یہ دوسرے غیر مقلد مولانا عبدالستار حماد غیر مقلد اپنی کتاب مختصر صحیح بخاری، یہ دیکھو صحیح بخاری کے نام پہ کیا لکھتے ہیں، اس کی جلد 1 اور صفحہ 437 پر لکھتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مردے قبروں میں سنتے ہیں۔ اب یہ غیر مقلدین پتہ نہیں۔ اچھا، غیر مقلدین کے نزدیک بخاری شریف کے مشہور شارح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی کے مقلد تھے، لیکن ان غیر مقلدین کے دھوکوں سے دیکھو، زبیر علی زئی اپنی کتاب
अमीन उकाड़वी का ताकुब, उसकी किताब का नाम है जुबैर अलुदाई, गैर मुकल्लिद की किताब का नाम है अमीन उकाड़वी का ताकुब। उसके सफा 54 पर लिखते हैं कि हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ये भी गैर मुकल्लिद थे। चलो गैर मुकल्लिद थे, लेकिन इस गैर मुकल्लिद की बात तो मानो। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में जिल्द 7 और सफा 22 पर लिखते हैं इन्ना हयातहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल क़ब्र ला युअक़िबुहा मौतुन बल यस्तमिरु हय्यन वल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम, कि सय्यिदना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में ऐसी जिंदगी है जिस पर फिर मौत वारिद न होगी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में हमेशा जिंदा है। ये गैर मुक़ल्लिदीन, और ये गैर मुक़ल्लिदीन की काजी शौकानी, अल्लामा शौकानी गैर मुक़ल्लिदीन के वो क्या लिखते हैं अपनी किताब तुहफ़तुज़ ज़ाकिरीन के सफ़ा 28 पर, कहते हैं इन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन फी क़ब्रिही व रूहुहु ला तुफ़ारिक़ुहु लिमा सह्ह अन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुब्र, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है और आपकी रूह मुबारक आपके जिस्म से जुदा नहीं, क्योंकि सही हदीसों में ये आया है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा है। ये दूसरे गैर मुक़ल्लिद मौलाना शम्सुल हक आज़िमाबादी, जिसने अबू दाऊद शरीफ की शरह लिखी है, उसकी किताब है अबू दाऊद शरीफ की शरह उसने लिखी है बनाम आउनुल माबूद। आउनुल माबूद में ये शम्सुल हक आज़िमाबादी गैर मुक़ल्लिद लिखता है जिल्द 1 सफ़ा 406 पर कि इन्नल अंबिया फी क़ुबूरिहिम अहयाउन, कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा है। पता नहीं कि गैर मुक़ल्लिदीन इन बड़ों को क्यों नहीं मानते। ये दूसरा मशहूर गैर मुक़ल्लिद है मौलाना अताउल्लाह हनीफ, गैर मुक़ल्लिद, जिसकी मशहूर किताब है निसाई शरीफ का, उसने हाशिया लिखा है अत-तालिक़ातुस सलफ़िया, ये सलफ़ी तालिक़ात है। देखो क्या लिखते हैं अत-तालिक़ातुस सलफ़िया जिल्द 1 सफ़ा 233 पर कि इन्नहुम अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून, कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा है, नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, गैर मुक़ल्लिदीन के शेखुल कुल फिल कुल सैयद नज़ीर हुसैन देलवी, जिन्होंने गैर मुक़ल्लिदियत की बुनियाद रखी थी अंग्रेज के साथ मिलकर, वो अपनी किताब फतावा नज़रिया में क्या लिखते हैं? फतावा नज़रिया जिल्द 1 सफ़ा 7 पर लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में जिंदा है और सुनते हैं, कब्र मुबारक में जिंदा है और सुनते हैं। शेखुल कुल फिल कुल ये लिखे। और ये दूसरे गैर मुक़ल्लिद है मेहर गुलाम रसूल। मेहर गुलाम रसूल बहुत बड़े गैर मुक़ल्लिद है, उनकी सवानेह किसी ने लिखी है, सवानेह मेहर गुलाम रसूल गैर मुक़ल्लिद। इसके सफ़ा 168 पर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में बिला वास्ता सुनते हैं, कब्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में सुनते हैं। ये गैर मुक़ल्लिद है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान, वो अपनी किताब सफ़ा 48 पर लिखते हैं कि मुर्दे कब्र में सुनते हैं, मुर्दे कब्र में सुनते हैं। अब पता नहीं कि गैर मुक़ल्लिदीन इन बातों के क्या जवाब देंगे। अच्छा, ये देखो मशहूर गैर मुक़ल्लिद मौलाना इस्माइल सलफ़ी, उनकी मशहूर किताब है तहरीके आज़ादी फ़िक्र। तहरीके आज़ादी फ़िक्र की सफ़ा 385 पर लिखते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत के दोनों मकातिब अहले हदीस और असहाबुर राय, इन सब से इस बात पर इत्तेफाक है कि अंबिया अलैहिस्सलाम और शुहदा अपनी कब्रों में जिंदा है और वो वहां पर इबादत में मशगूल है, तस्बीह में मशगूल है। सही अहादीसों में इस बात का तज़किरा आया है। ये मशहूर गैर मुक़ल्लिद अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अपनी किताब, या अल्लामा वहीदुज़्ज़मान, आगे मैं बताऊंगा कि ये गैर मुक़ल्लिदीन के सामने जब इसके हवाले पेश किए जाते हैं तो झट से बोल देते हैं गैर मुक़ल्लिदीन, क्या अल्लामा वहीदुज़्ज़मान तो गैर मुक़ल्लिद नहीं थे। शर्म आनी चाहिए इन गैर मुक़ल्लिदों को कि जब इनके सामने अपने उलमा के अक़वाल पेश किए जाते हैं तो उनको रद्द कर देते हैं। यह अल्लामा वहीदुज़्ज़मान, इसने सुनन इब्ने माजा का तर्जुमा लिखा है, उसकी जिल्द 1 सफ़ा 814 पर लिखते हैं
814 पर कि तमाम अइम्मा अहले हदीस का इस बात पर इत्तेफाक है, तमाम अहले हदीसों का इत्तेफाकी, देखो इजमाई मसला है। क्या लिखते हैं वहीदुज़्ज़मान कि तमाम अहले हदीसों का इस बात पर इत्तेफाक है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र शरीफ में जिंदा है, और कब्र के पास जो दुरूद और सलाम पढ़े तो उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं, और अहादीस से यही बात साबित है। पता नहीं कि गैर मुक़ल्लिदीन इन हवालों को क्यों नहीं मानते हैं। अब गैर मुक़ल्लिदीन के सामने जब अपने वहीदुज़्ज़मान के मसाइल पेश किए जाते हैं, बल्कि इनके ये मशहूर या गैर मुक़ल्लिद वहीदुज़्ज़मान तो यहाँ तक लिखते हैं कि इन गैर मुक़ल्लिदों को शर्म नहीं आती है। क्या लिखते हैं? ये वहीदुज़्ज़मान अपनी किताब तैसीरुल बारी जिल्द 2 और सफ़ा 325 पर जो ताज कंपनी वालों ने छापा है, ये तैसीरुल बारी उसकी बुखारी शरीफ की तरह गैर मुक़ल्लिद की। वहीदुज़्ज़मान क्या लिखते हैं? कहते हैं कि मुझे उन लोगों पर बड़ा ताज्जुब आता है जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं और फिर भी सही हदीसों का इनकार करते हैं। सही हदीसों में आया है कि मुर्दे कब्रों में सुनते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में बाकायदा हदीस नकल की है, अल अब्दु इज़ा वुज़िअ फी क़ब्रिही व तवल्ला व ज़हबा अस्हाबुहु हत्ता अन्नहु यस्मअु क़रअ निआलिहिम अताहु मलकान, कि मुर्दा जब कब्र में रख दिया जाता है और उनके दफन करने वाले लोग उनसे वापस होते हैं, तो वो दफन करने वाले जो लोग उनसे वापस होते हैं उनकी जूतियों की आवाज सुनता है कब्र में मुर्दा। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन के सामने जब वहीदुज़्ज़मान के हवाले पेश किए जाते हैं, इमाम बुखारी ये बाकायदा बाब बांधे बाबुल मय्यित यस्मअु ख़फ़्क़न निआल, कि मुर्दा जूतियों की आहट को सुनता है। गैर मुक़ल्लिदीन के सामने जब वहीदुज़्ज़मान के हवाले पेश किए जाते हैं तो झट से बोल लेते हैं कि भाई हम वहीदुज़्ज़मान को नहीं मानते, वो तो मुक़ल्लिद था। आइए खुद गैर मुक़ल्लिदीन से पूछते हैं। ये किताब है 40 उलमाए अहले हदीस मौलाना अब्दुल रशीद इराकी की, मौलाना अब्दुल रशीद इराकी की 40 उलमाए अहले हदीस। ये गैर मुक़ल्लिद खुद लिखता है सफ़ा 106 पर कि अल्लामा वहीदुज़्ज़मान जो था उसने मौलाना बदीउज़्ज़मान गैर मुक़ल्लिद की सोहबत में बैठकर अहले हदीस मसलक कबूल कर लिया था। ये खुद लिखते हैं। अच्छा, ये गैर मुक़ल्लिद है मौलाना मुहिबुल्लाह राशिदी गैर मुक़ल्लिद, उसकी मशहूर किताब है मकालात राशिदिया, उसकी जिल्द 1 सफ़ा 86 पर लिखते हैं ये गैर मुक़ल्लिद खुद कि अल्लामा वहीदुज़्ज़मान मशहूर गैर मुक़ल्लिद है। ये दूसरी किताब है फतावा अहले हदीस जिल्द 2 सफ़ा 24 पर गैर मुक़ल्लिदीन के शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी लिखते हैं कि अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस थे। ये दूसरे गैर मुक़ल्लिद है इमाम खान नौशहरी, उसने किताब लिखी है तराजुम उलमाए अहले हदीस उलमा के हालात जमा की है। उसमें वो लिखते हैं कि अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने गैर मुक़ल्लिदीन के लिए बड़ी खिदमत कर अंजाम दी, लिहाजा ये वहीदुज़्ज़मान जो था ये पक्का सक्का गैर मुक़ल्लिद था। और ये 40 उलमाए अहले हदीस में लिखा है कि ये नज़ीर हुसैन देलवी शेखुल कुल का शागिर्द था। बहरहाल और भी बहुत सारी किताबें हैं। देखो ये मौलाना इरशादुल हक असरी मशहूर गैर मुक़ल्लिद है, उसकी किताब है पाक वहीन में उलमाए अहले हदीस की खिदमत हदीस, कि अहले हदीसों ने हदीस की क्या क्या खिदमत की। उसकी सफ़ा 80 पर मशहूर गैर मुक़ल्लिद मौलाना इरशादुल हक असरी लिखते हैं कि वहीदुज़्ज़मान गैर मुक़ल्लिद था, अहले हदीस था। मशहूर गैर मुक़ल्लिद मौलाना रईस नदवी जो हिंदुस्तान का बहुत मुतअस्सिब गैर मुक़ल्लिद था, उसकी मशहूर किताब है मजमुआ मक़ालात पर सलफ़ी तहक़ीक़ी जायज़ा। इस किताब के सफ़ा 940 पर लिखते हैं कि वहीदुज़्ज़मान सिर्फ गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस नहीं था, बल्कि लिखते हैं कि अहले हदीसों का इमाम था। लिहाजा ये गैर मुक़ल्लिदीन जो वहीदुज़्ज़मान से इनकार करते हैं ना, ये इनके बस अल्लाह इस फितने से उम्मत की हिफाजत फरमाए, ये लोगों को कितना धोखा देते हैं। बहरहाल ये बात साबित हो गई कि खुद इनके अपने बड़े मानते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा है और वो कब्रों में सुनते हैं।
اب ان غیر مقلدین کو چاہیے کہ بجائے علماء حق اہل سنت والجماعت پر کفر اور گمراہ ہونے کا فتویٰ لگانے کے بجائے وہ اپنے ان علماء پر کفر اور گمراہ ہونے کا فتویٰ لگائے.